Hello viewers, I am Deepthi. Today I am going to solve section B for ICSE class 10 physics paper for the year 2026. So starting with section B, question number 4, a ray of light enters a glass block, not glass slab, from air and comes out from the opposite surface. If the angle of refraction at the first surface is not the same as the angle of incidence at the second surface, तो glass block is there, ये तो mention है कि glass block है, but the surfaces are not parallel क्योंकि it is mentioned in the question angle of refraction at the first surface. अगर this is the normal, this is angle of incidence, this is angle of refraction, but these are not same. अगर ये angle और ये angle not same, this angle and this angle are not same. This is given the question as angle of incidence at the second surface. Angle of refraction means यहाँ का suppose it is R1, it is I1, this is I2 ना, for the second surface this is I2. So I2 or you can say यहाँ से जब बाहर निकलेगी तो it will go like this, so it will become R2. तो I1 second surface के लिए we are talking about second surface क्योंकि उसमें second के लिए बोला गया. So this is let I2 and then R2. So now first part is what is the product of the ratio sin I upon sin R at the first surface and the second surface. So if they are asking normal, so we know that mu is equal to at the first surface sin I upon sin R. So first तो हमने देखा we have taken I1 and R1. For second surface we will take it as sin. So वहाँ पर हमारा I2 अपॉन साइन R2 हो जाएगा. तो जनरली तो जो इसका R1 होता है ये हमारा R2 इसके लिए हो जाता है और दिस इज I2, ये एमर्जेंट हमारा एंगल होता है और ये रिफ्रैक्ट R2 होता है. तो अगर हम उसको कंसिडर करेंगे R2 और I2 तो ये अपोजिट हो जाएगा इसका. तो इफ अगर हमने अब जैसे एज यू नो 1 mu 2 एंड 2 mu 1 इन दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1 होता है. तो इफ वी आर टेकिंग द नॉर्मल कंडीशन देन इट इज इक्वल टू 1, बट इन्होंने मेंशन नहीं किया तो वी कांट टेक, वी हैव टू जस्ट राइट कि इन दोनों का प्रोडक्ट करके लिख दिया जाए. नाउ सेकंड इज स्टेट वेदर द अपोजिट सर्फेसेस आर पैरेलल और नॉट पैरेलल. यस दे आर नॉट पैरेलल, ये तो क्लियर ही हो गया क्योंकि दे हैव गिवन कि दीज टू एंगल्स आर नॉट सेम. एंड हाउ विल यू रीच द कंक्लूजन? बिकॉज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन at the first surface is not the same as the angle of incidence. अगर ये rectangular glass slab है तो दोनों एंगल सेम होने चाहिए क्योंकि उसमें तो आपके पास दो लाइंस आते हैं, इट विल एक्ट एज ए ट्रांसवर्सर. तो हम इसमें लेते हैं कि ये दोनों एंगल यहाँ पर सेम सेम आ रहे हैं, बट इस केस में तो ऐसा नहीं है. सो वी कांट से दैट दे आर पैरेलल. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर मतलब फोर्थ का ही पार्ट नंबर 2. टाइप ऑफ ग्लास ब्लॉक हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.8. So we know mu is equal to C upon V. Here we have to calculate the speed of light in glass. So V glass is equal to C upon mu. So V is equal to C is given as 3 into 10 raised to power 8 and mu is 1.8. So it will become 30 upon 18 into 10 raised to power 8. 6563 5 upon 3 means 1.667 into 10 raised to power 8 meter per second. If the width of this block is doubled, then what will be the speed of light in the block? The speed of light means V depends only on mu पे depend करता है and frequency पे depend करता है. It does not depend on width of the block. So it will have no impact because it does not depend on thickness. Now third, name the electromagnetic radiation used to detect fake currency. So these are ultraviolet radiations क्योंकि हमें पता है they produce fluorescence on striking a zinc sulfide screen. तो उसी से करेंसी का पता लगाते हैं, फेक करेंसी. सेकेंड इज रीड ऑर्डर डायग्राम की मैंने आपको बहुत क्लियरली अपनी वीडियोस में बहुत बार बताया हुआ है. दिस इज आता है एक क्वेश्चन. दिस इज 90, दिस इज 30, दिस इज 60. So the ray is entering from the base side, so it will go undivided as here angle is 90 degree, it will go undivided. Here this angle is 60 degree. So with the normal this ray will make an angle of 60 degree and it is given that critical angle is 42. So 60 is greater than 42. So TIR will happen and it will again make an angle of 60 degree here. So it will go like this. Now when it strike on this first perpendicular surface, then with the normal, because here angle is 30 degree, with the normal यहाँ पर 30 degree का angle बनेगा and क्योंकि denser to rarer medium it will go away from the normal, so more than 30 degree का angle बनाते हुए it will come out from the perpendicular side of this right angular prism. Now coming to question number 5. So in question number 5
An object placed in front of a convex lens forms an image of same size as on the screen. तो इट मीन्स ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, सेम साइज बन रहा है, तो एफ है 2f है, एफ है 2f है, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो 2f पे है इनिशियली और 2f पे ही इमेज बन रही है, क्योंकि सेम साइज आपको पता है सिर्फ यहीं पर ऑब्टेन होता है. On the screen, moving the object 12 cm closer to the lens result in the formation of real image, which is 3 times the size of the object. If we are moving this object from 2f 12 cm closer to the lens, means decrease कर दिया हमने u का distance, which is 3 times the size of the object, उतनी real image बन रही है. So first of all, magnification is equal to v upon u. मतलब इसका आंसर हमें 3 के इक्वल दिया है, u तो नेगेटिव होता ही है, तो मतलब v is equal to 3u, क्योंकि गिवन है कि रियल इमेज है, तो v में हमने नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं करना है. Now 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. बट आपको यहाँ पर u ध्यान से कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इनिशियल कंडीशन मतलब इसको अगर हम u ले लेते हैं तो अगर न्यू डिस्टेंस पर u डैश आप मेंशन कर सकते हो, u1 भी ले सकते हो, इट विल बिकम 2f से डिक्रीज हुआ है, तो इट विल बिकम 2f minus 12. 2f minus 12 is our new image, object distance. So now image is 3u. So here in place of v I will write 3u minus 1 by u का साइन आपको पता है नेगेटिव है, is equal to 1 by f only. So here if I take LCM it will become 3u 1 and plus here u 3, it means 4 upon 3u is equal to 1 upon f. So f is the reciprocal of this, it will become 3u upon 4. Now in place of u we have to fill that value, क्योंकि हम तो u डैश के लिए बात कर रहे हैं ना, न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, so it will become 2f minus 12 upon 4 is equal to f, या फिर हम इसको उधर भी लेके जा सकते थे, सिंप्लीफाइंग 6f minus 12 336 is equal to, यहाँ पर 4 है 4f, so 6f minus 4f is equal to 36. So 2f is equal to 36, f is equal to 18 centimeter is the final answer. Convex lens है तो focal length positive ही रहेगा. So answer will be plus 18 centimeter. नेगेटिव हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि रियल इमेज गिवन है. अगर रियल इमेज नहीं होता तो हमें दो वैल्यूज लेके करना पड़ता. Now second part, atmospheric temperature after hailstorm is greater than the temperature during the hailstorm. बाद में गर्मी हो जाती है, ठंड हो जाती है, तो this statement is false. Which thermal physical quantity of a frag pan changes by making its base heavier? तो यहाँ पर specific word नहीं लगाना. This physical quantity is thermal capacity. बस we have to write this is thermal capacity, or you can write heat capacity also. Capacity. Now state the principle of calorimetry for a perfectly insulated system. Heat energy lost by a hot body is equal to heat energy gained by a cold body. अगर आपने न्यूमेरिकल्स किए हैं तो ये हर जगह ही आया है. Now coming to question, same question number 5 part 3. Now given graph represent the cooling curve of a liquid. मुझे ये नहीं पता चलता कि सिलेबस में कूलिंग कर्व मेंशन नहीं है. हीटिंग कर्व में क्या क्वेश्चंस की कमी हो जाती है जो एग्जामिनर कूलिंग कर्व पे ही चले जाते हैं. या तो स्पेशल मेंशन कर दो सिलेबस में कि कूलिंग कर्व भी सिलेबस में ही है. हालांकि कुछ नहीं करना, जस्ट उसका अपोजिट लेना है, वही प्रिंसिपल इस पे अप्लाई करना है. बट फिर कूलिंग कर्व सिलेबस में मेंशन क्यों नहीं कर देते हैं, या पेपर सिलेबस के अकॉर्डिंगली बनाया क्यों नहीं जाता. क्लास 10 के स्टूडेंट्स को 11-12 का स्टूडेंट से क्यों कंपेयर किया जाता है. क्या वो अभी से 11-12 के कॉन्सेप्ट सीख जाएं. ये पॉइंट हमारा कॉन्सेप्ट सीखना ही नहीं चाहता. मैंने लास्ट ईयर भी वीडियो बनाई थी कि सो मेनी स्टूडेंट्स आर लीविंग साइंस स्ट्रीम जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिक्स पेपर, दे आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स. बट शायद आईसीएसई यही चाहता है कि आईएससी में ज्यादा साइंस स्टूडेंट बचने ही नहीं चाहिए, तो ताकि साइंस स्टूडेंट छोड़ दें स्ट्रीम, कोई दिक्कत नहीं है. फिर से कूलिंग कर्व दिया गया, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो हम हीटिंग कर्व में लगाते हैं वही है.
स्टेट द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, तो जहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखाई दे रही है और हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर क्यू आर पे दिखाई दे रही है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर की लाइन ये है, तो इस लाइन पे टेम्परेचर की वैल्यू 20 है, तो इट इज 20 डिग्री सेल्सियस। नाउ नेम द फेज चेंज हैपनिंग एट रीजन क्यू आर, तो क्यू आर पे कौन सी फेज कौन सी में चेंज हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पर कूलिंग कर्व की बात कर रहे हैं, तो ये लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहा है, यानी लिक्विड टू सॉलिड, जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। तो यहाँ पर फ्रीजिंग हो रही है। इन विच स्टेट सॉलिड और लिक्विड डज द अबव सब्सटेंस लिबरेट हीट एट ए फास्टर रेट, तो बेसिकली तो इसको आपने मतलब देखना है, ऑब्जर्व करना है कि स्लोप किसमें ज्यादा है, बट मुझे शो करना पड़ेगा, तो स्लोप ऑफ पी क्यू के लिए हम वाई एक्सिस की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस की क्वांटिटी, यानी कि टेम्परेचर में कितना चेंज आया है, तो चेंज इन टेम्परेचर और डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, इन दोनों को कंसिडर करेंगे। तो चेंज इन टेम्परेचर विल बी कितना आ रहा है, 20 से 50, यानी कि 50 माइनस 20, और टाइम में कितना चेंज आया है, 20 माइनस 0, तो 20 माइनस 0, तो यहाँ पे में 20 ही हो गया, तो इट मीन्स 30 अपॉन 20 इट विल बिकम 1.5। अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है तो वो सेकेंड में है। Now we are talking about RS phase. For RS phase जितना भी स्लोप आ रहा है, we have to write ना कि slope of this, तो यहाँ पर भी change in temperature, कितना change in temperature है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 0 से 20 तक जा रहा है, तो it will become 20, और यहाँ से phase मतलब टाइम का चेंज कितना है, we are talking only about this phase, हम बाकी के लिए नहीं बात कर रहे। 35 minus 30, so it will become 20 divided by 5, it will become 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। तो आप अब इजीली कंपेयर कर सकते हो कि किस में ज्यादा आ रहा है। तो इन विच स्टेट सॉलिड और लिक्विड डज द अबव सब्सटेंस लिबरेट हीट एट ए फास्टर रेट, तो ऑब्वियसली सॉलिड वाले में चेंज कर रहा है, तो ये हमारा सॉलिड फेज को डिपिक्ट कर रहा है, सॉलिड वाले के लिए आएगा, क्योंकि लिक्विड टू सॉलिड, तो यहाँ पर सॉलिड आ गया है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस होना चाहिए पेपर, क्वेश्चन बुक से रिलेटेड होने चाहिए, कुछ चीजें तो बुक से होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट को पढ़ने का मजा तो आए, पेपर सॉल्व करने का मजा तो आए। डायग्राम शोज अ व्हील विद अ हैंडल, टू फोर्सेस F1 and F2 of equal magnitude same are acting on the handle. Now which force produces negative moment? तो नेगेटिव कब होता है, जब क्लॉकवाइज मोमेंट होता है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट इसमें कौन दे रहा है आपके पास, F2 से तो हम ऐसे जा सकते हैं और F1 से ऐसे जाएंगे, यानी कि क्लॉकवाइज मोमेंट F1 फोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। इज दिस व्हील इन इक्विलिब्रियम, यस होता अगर दोनों का ही रेडियस सेम हम लेके उतनी ही आर्म लेंथ ले रहे होते, बट हियर दिस इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। नो, व्हाट इज द रीजन, क्योंकि F2 फोर्स के लिए तो वी विल कंसिडर F2 इंटू आर, चाहे वो हमारा पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही आ रहा है तो 0 हो जाएगा, बट यहाँ पर समथिंग F1 के साथ वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन ये जो बचा हुआ पोर्शन है, तो दिस इज x, तो इट मींस इसकी कुछ नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, इसकी तो 0 आ रही है, तो दिस इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके वहां पर दिखाना है। Now name the unit of work done used in subatomic scale, तो this is electron volt, 1.6 into 10⁻⁻19 हम पढ़ते हैं ना, उसी के लिए यहाँ पर आ जाएगा। Now to which class of lever does a pair of scissor belong? तो this belong to class 1, आपको 1 लिखना है। A stone is tied to a string and displaced from A to B by the application of constant force in 3 different ways। आप देख सकते हो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, वहां पैरेलल है, वहां अपवर्ड है। Shown the diagram, arrange the 3 cases in ascending order of the work done by the force, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। This is given that AGB is a semicircle, theta less than 90 है, AB 20 मीटर है। तो if we are taking case 1 initially, तो यहाँ पर F आपका टोटल वैल्यू F की हमें क्वेश्चन में गिवन है, F में ही लेनी है हमने। सो यहाँ डायमीटर एज यू कैन सी ना, यहाँ पर से ऐसे जा रहा है, तो सेमी सर्कल, तो F वर्क डन इज इक्वल टू F1 के केस में, या FA ले लो, F नहीं, ओके, F1 इज इक्वल टू F इंटू एस, F इंटू एस, एस मीन्स कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ, इफ इट इज ए कंप्लीट सर्कल देन 2 पाई आर, बट बिकॉज इट इज ए हाफ सर्कल देन पाई आर, तो पाई की वैल्यू वी कैन टेक 3.14 एंड आर इट इज गिवन एज टोटल है 20, बट रेडियस इज गिवन, मतलब 20 का हाफ हो गया 10, so it will become 31.4 F. This is our first equation related with case 1.
नाउ कमिंग टू केस 2 यानी कि F2 में यू कैन सी इट इज पैरेलल, तो पैरेलल मींस cos थीटा इज 0, तो इट बिकम F इंटू S कितना है 20 इंटू cos 0 मींस 1, तो इट विल बिकम 20F। तो ये हमारा मैक्सिमम फोर्स होता है सेकेंड इसमें, मतलब पैरेलल जब होता है, क्योंकि cos की वैल्यू 0 है इसलिए। नाउ F3 की वैल्यू के लिए ऊपर जा रहा है और वो थीटा ऊपर बना हुआ है जिसके पैरेलल के साथ है, तो इट विल बिकम Fs cos थीटा, Fs cos थीटा, लेकिन थीटा जो है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, क्योंकि उसने बोला थीटा इज लेस देन 90, तो उसमें वो 1 से छोटा ही रहेगा, तो इट इज ऑलवेज लेस देन, तो यही वाली वैल्यू से बड़ी होगी, यानी कि F3 जो है इट इज लेस देन F2। तो पहले वाले से हमने क्या कंडीशन निकाली कि ये इससे ज्यादा बड़ा है, यानी कि F1 सबसे ज्यादा बड़ा आ रहा है F2 उससे, और F3 सबसे कम आ रहा है। सो इनके केस के अकॉर्डिंगली लगाएंगे तो केस 1 इज ग्रेटर देन केस 2 एंड इज ग्रेटर देन केस 3। तो यहाँ पर इनका असेंडिंग ऑर्डर इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि थीटा 90 और 0 के बीच में, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा कि 0 और 1 के बीच में वैल्यू रहेगी। नाउ कमिंग टू पार्ट 3 ऑफ दिस क्वेश्चन, बॉल ऑफ मास 20 ग्राम फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 45 मीटर, तो मास इज गिवन एज 20 ग्राम, जो कि ऐसा यूनिट नहीं है, तो 20 अपॉन 1000 इट विल बिकम, चलो अभी 2 अपॉन 100 kg ही ले लेते हैं। Now calculate the initial potential energy of the ball. तो initial potential energy means U is equal to mgh. M है, G is given in the question as 10 and H is given as 45. So कितना हो जाएगा? It will become 90 upon 10. It means 9 joule. For second part, B part, you can say the speed of ball at which it hits the ground. तो स्पीड मीन्स हमें यही एनर्जी जो है इज इक्वल टू हाफ mv के स्क्वायर के इक्वल लेना है, क्योंकि उसी हाइट की वजह से उसके पास स्पीड आनी है, तो 9 इज इक्वल टू हाफ, मास इज गिवन एज 2/100 इंटू v स्क्वायर, 2 कैंसल, v स्क्वायर इज इक्वल टू 900, इट मीन्स v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल आंसर फॉर दिस। C is loss in kinetic energy on striking the ground, तो loss in kinetic energy is equal to जो फॉर्मूला हमें गिवन है mgh2 minus h1, तो m हमें मालूम है 2 अपॉन 100, g is 10, h2 इज हम जो भी बिगर वाला है उसको ले लेंगे, अपॉन सेकेंड हाइट बाउंस हो रहा है 40 तक में, तो कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम 2 अपॉन 10 इंटू 5, तो 10 upon 10 it means 1 joule is the final answer for question number 6. So question number 4, 5 and 6 I have covered in this video. For remaining 3 questions I will make another video. So thank you for watching till then. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. Hope आपके बहुत सारे आंसर्स ठीक होंगे। अभी इनमें से भी मैं कुछ आंसर्स के लिए डीप थॉट लूंगी उसके बाद। थैंक यू।